کا حصہ بن رہے ہیں. ساتوں یونین کونسل سے, شہر سے بہت سے لوگ ہمارے قابلے کا حصہ بن رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا, راجہ شعیب عابد ایک پڑھا لکھا نڈر اور ایک دلیر لیڈر ہے. اس کو کامیاب کر کے اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کریں. میں اس اسٹیج کی وساطت سے آپ کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 25 جولائی کا سورج راجہ شعیب عابد کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. اور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ نے جیت کے نشان کو جیت کے نشان میں تبدیل کرنا ہے. اور میں اس شہر سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے اور بہت سے مقررین نے ابھی خطاب کرنا ہے. کون طاقوں میں رہا کون سرے راہ, کون طاقوں میں رہا کون سرے راہ, شہر کے سارے چراغوں کو آواز آنتی ہے. بس سلام. ریلی سیدن سے راجہ کیسر نوابی صاحب اور سپورٹ صاحب دوست پنڈال کی علیل ایڈوکیٹ خلا راجولی, سہیل چودھری بسار, ارشد چودھری کھارا اور سمیم بٹ ایڈوکیٹ, ریحان شریف ایڈوکیٹ. یہ تمام عید سے لڑ رہا ہوں جبر کے اندھیروں سے, امید زہر جو ہوگی پھر اپنی ہوگی. جناب سٹیج پہ تشریف فرما آج کی تقریب کے مہمان خصوصی جناب راجہ شعیب عابد صاحب قائد کشمیر اور ان کے ساتھ سٹیج پہ تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور پنڈال میں تشریف فرما بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم. میں سب سے پہلے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت پنڈال سجایا اور غیرت مند شہری ہونے کا ثبوت دیا. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا, میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہے اور 25 جولائی کو صرف رسمی کارروائی ہوگی اور 25 جولائی کا سورج شعیب عابد کی کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. ان آندھیوں سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہیں ہم, ان آندھیوں سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا. والسلام. ٹھیکدار خالق صاحب افطارہ, انصر محمود صاحب فرام پنور, چودھری زاہد صاحب فرام منجواڑی کو پنڈال احمد پر خوش آمدید کہتے ہیں. کہ وہ اکثر رائے پر سے, سچانی سے, سالیہ سے, رائے پر سے, تھنپال سے, ویلی بگاؤ سے, ترکٹا سے جتنے بھی دوست بزرگ یہاں تشریف لائے انہیں شعیب عابد صاحب کی جانب سے دل کے آتھا گرہن سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے بعد جناب وحید کیانی سرکی 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. گرمی سخت ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کٹکتا ہوں, سر محفل جو بولوں تو زمانے کو کٹکتا ہوں, رہوں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. میرے انتہائی قابل عزت و قابل احترام میر بزم و میر کارواں امیدوار اسمبلی جناب راجہ شعیب عابد صاحب, صدر تقریب سیاسی و سماجی شخصیت جناب حاجی شریف صاحب, سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ اس جمع غفیر کو دیکھ کر آج آپ نے جو محنت اور کوشش کی تھی اور میرے قائد جناب شعیب عابد صاحب نے جو 10 سال اس حلقے کی خدمت کی ہے اس کے صلے میں آج اہلیان ڈڈیال نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. انشاءاللہ 25 تاریخ کو جیت شعیب عابد کی ہوگی, جیت آپ کی ہوگی کیونکہ شعیب عابد صاحب نے جس طرح 10 سال آپ کی خدمت کی ہے انشاءاللہ وہ بطور MLA وہ اگلے 5 سال آپ کی خدمت کریں گے. میں ٹائم مختصر ہونے کے سلسلے میں اس لیے میں آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ
सीनियर मुकर्रिरीन स्टेज पर मौजूद हैं, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। चौधरी अंसर साहब, सुधाकर हुसैन साहब, अमजद हुसैन, जाहिर अब्बास, चौधरी नवीद, अब्दुल रशीद थारा, बाबा सादक, मिर्जा असलम साहब तलायार, राजा आदत साहब, राजा इब्रार, खुशामदीद कहते हैं। शोएब तेरे जानिसार, शोएब तेरे जानिसार, जीप ते मारा, ठको ठक, जीप ते मारा, जीप ते मारा, जीप ते मारा। औज़ु बिल्लाहि माजरत के साथ आप दोस्त यहाँ से आ जाएंगे। एक तो मुकर्रीन ऊपर आना होता है, साफियों को कवरेज में प्रॉब्लम होती है। आप दोस्त स्टेज थोड़ा सा खाली कर देंगे रास्ता, मुकर्रीन ने भी ऊपर आना होता है और साफियों को कवरेज में मुश्किल पेश आती है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान ख़ुसूसी शोएब आबद साहब, मोअज़्ज़ज़ीन इलाका, वाजिबुल क़दर दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज दोस्तों तुसा इतना बड़ा जमे गफीर तकी कि तुसा के सलूट और तुसा की मुबारकबाद के तुसा मुस्ताहिक हो कि तुसा लोग आज शोएब आबद की आवाज बनते हो। पता लगा कि जगह बेकस, लाचार और गरीब लोग है, उन्होंने सिर्फ एक उम्मीद ही नहीं और शोएब आबदा पिछले 2 महीने तो ऐसा कैंपेन मसरूफ है उसने। आज आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि डिडियाल की अवाम ने आज आपके हक में फैसला सुना दिया है। 25 तारीख बस अब एक रस्मी कार्रवाई बाकी है। इंशाल्लाह ये डिडियाल की व्यूअर अवाम आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह 25 तारीख को आपको कामयाब कराएगी इंशाल्लाह। और मेरी आप तमाम दोस्तों भाइयों से गुजारिश है कि 25 तारीख को घरों से निकलें और जीप के निशान पर मोहर लगाकर राजा शोएब आबद साहब को कामयाब कराएं। वस्सलाम। राजा साकिब फ्रॉम उना, अफजल पज्जी साहब, राजा अल्ताफ, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज पे बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान, पिंडाल में बैठे हुए दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जमे गफीर इस बात का सबूत है कि आपने शोएब आबद साहब के हक में फैसला सुना दिया है। 25 तारीख इंशाअल्लाह शोएब आबद साहब कामयाबी का दिन है। 25 तारीख को सब लोग घरों से निकलें और अपने वोट डालें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। उस्मान ख्वाजा साहब सालिया से मैं उनसे गुजारिश करूँगा वहाँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। उस्मान ख्वाजा साहब सालिया। शामीर शाह साहब आप मेरे पास आ जाए। शामीर शाह और मोला शाह डगार से। उस्मान ख्वाजा साहब। शोएब आबद तेरा जानिसार, शोएब आबद तेरा जानिसार। शोएब तेरे जानिसार, शोएब तेरे जानिसार, जब तक सूरज चांद रहेगा। शहरी रजगान से राजा हबीबुल्लाह एडवोकेट साहब, राजा शफाक शाकी, राजा नासिर, मुगल अब्दुल अजीज, राजा बनारस, राजा नवाज, राजा आसफ, राजा अंसर, राजा अब्दुल रऊफ, मुगल अजीज चौधरी साहब को पंडाल खुशामदीद कहते हैं। जब मैंने देखी हिस्ट्री कामल यकीन आया, जिन्हें मरना नहीं आया उन्हें जीना नहीं आया।
میرے عزیز دوستو اساں ایک مختصر جا سفر سی جڑا اچانک شروع کیتا راجہ شعیب عابد صاحب نے ہم نوا بنتے ہیں انشاءاللہ اساں اس کی کامیابی نال تکمیل کی طرف کھڑنے پے ہیں 5 جولائی ان قریب یہ فیصلہ سناسی انشاءاللہ ڈڈیال تو راجہ شعیب عابد آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی نے ممبر منتخب ہو سن عام آدمیاں نے مسائل حل ہو سن شعیب عابد صاحب کی ایک گل نہ درات راجی نہ کہ یہ نوجوانوں نے چمیا غفیر انہوں نے کیا منسلک ہوا یہ نوجوان کھڑپیچی سسٹم تو سخت نفرت کر رہے ہیں تساں بندے اس غلہ نہ ثبوت دیسو کہ کھڑپیچی نظام تو تساں سخت نفرت کرنے ہوئے سارے کوئی بھی کھڑپیچی نظام نہیں بننا ڈڈیال نے 35 لوگ اٹھی سے فیصلہ کریں کہ آیا فلاں بندہ اسمبلی پہنچے سی کیا پہنچی جیسی عام عوام کی بھی تو پتہ ہونا چاہیے نہ نمائندہ کون ہے انشاءاللہ 5 جولائی بالکل مختصر دیہڑے 9 دنوں نہ فرق ہے 5 جولائی کی جناب اپنے اپنے پولیس اسٹیشن پر جیپ نے نشان پر مہر لائی ہے راجہ شعیب عابد آزاد امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ 11 ڈڈیال انہیں کی قانون ساز اسمبلی نے ممبر بناؤ اور دیگر باقی مسائل نہ گلے میں ٹوٹی نلکے نے سیاست سے نکلی جاؤ خالی آج اب ڈڈیال بغیرت جڑی غیرت مند عوام ہے اس کی اتنا فرق نظر اشنا چاہیے نا کچھ دن پہلے اتنا ہی جلسہ سی اتنا خاردار تارانہ ایک فاصلہ سی سٹیج اور عوام کے درمیان ایک فرق سی اور جو فرق ختم ہو چکیا یہ جیسا کی عزت اور وقار چاہے گا آج تو بعد انشاءاللہ بفضل خدا سارے فیصلے اس ڈڈیال شہر میں اندر حسن نہ کہ بنی گالا جسن نہ لڑکانہ حسن نہ راون رینگر حسن یہ عوام کا سر کرتے جس کے اوپر نہیں کر سکتے کوئی عوام ایک ہماری گل بہت سارے یاد رکھے شاپران اور عوام متعین کرنی ہے شاپران مضبوط کے لیے ہمیں عوام متعین نہیں کر سکتے نہ کہ عوام متعین کر سکتے عوام متعین کرنی ہے وفاق میں جس کی حکومت کشمیر میں اسی کی ہوگی نہیں ہوگی آج کے بعد کشمیر میں کشمیریوں کی حکومت ہوگی کسی ان کشمیر فروشوں کی جنہیں کشمیر بیچیا 5 جولائی ایک گندہ پور علی امین نانا کی ناپاک نالا گندہ پور انہاں کی 5 جولائی کی ایسا مطلب ہے پولنگ سٹیشن نے اندر ووٹ پول کری جواب دے سا تساں کی ایسا کس رتن گلی تو پار کر رہے ہیں ماڑے نال سالیہ میرا چھپا پولنگ سٹیشن پر تعاون کرنے والے سارے دوستوں نے بہت بہت شکریہ چودھری ذوالفقار چودھری زید گجر حقان بٹ ماڑے چاچا انتہائی عزیز چاچا آجی خورشید بٹ صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست جنہوں نے نہ کی سکیا سارے نہ شکریہ جنہوں تعاون کیتا ایک کامیاب ریلی نے سنقاد کیتا اساں اس پنڈال نہ حساب بندے ہیں تو سارے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں حیرت مند اور انہیں سبوت دیتا نے انہیں چورا انہیں ڈاکوا کی اساں انشاءاللہ دریا برد کرسا 5 جولائی فیصلہ اللہ پڑوڑ سے تشریف لائے حاجی عدالت صاحب راجہ کہ طاقت میں ہم تم سے کم نہیں مانا ہے کہ طاقت میں ہم تم سے کم نہیں آپ اترے ہیں میدان میں یا تم نہیں یا ہم نہیں اگر آپ اپنے علاقے میں نوجوان قیادت کا انتخاب چاہتے ہیں اگر آپ اپنے علاقے میں غریب مظلوم اور دیہڑی دار گیاؤں اور بدواؤں سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ آزاد کشمیر کو آزاد کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں غریبوں گیاؤں اور بدواؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو 26 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں 5 جولائی کو ہونے والے انتخابات میں راجہ شعیب عابد کے انتخابی نشان جیت پر مہر لگا کر یہ ثابت کریں ہم راسوں اور
जालिमों को नहीं मानते। मैं वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। 5 जुलाई को हर पोलिंग से जीप निकलेगी, तुम कितने कूड़ मारोगे। राजा अब्दुल जमिया और राजा अब्दुल पची साहब, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। असम्बली के उम्मीदवार राजा शोएब आबद साहब, पंडाल पर बैठे हुए दीगर अकाबरीन और स्टेज पर बैठे हुए अकाबरीन और पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिनों से तबीयत बड़ी नासाज है, जिसकी वजह से शोएब साहब की कमेंट ना चला सका। मैं आज सबसे पहले तो उन दोस्तों बुज़ुर्गों का इंतहाई दिल के थाक रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बेली बिठार, सियाफ और छत्रो खादमाबाद यूनियन कौंसिल से हमारे काफ़िले में शामिल हुए और हम यहाँ पंडाल पर पहुँचे। मैं इन तमाम दोस्तों और बुज़ुर्गों का दिल के थाक रहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जैसा कि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने ओवरसीज़ का नाम दिया है, मैं उन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो बरतानिया से तशरीफ़ लाए और कैंपेन का हिस्सा बने। और मैं बरतानिया में मौजूद उन दोस्तों का जिनका मैं जिक्र यहाँ ना करूँ तो उनके साथ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादती होगी, जिनमें हमारे भाई चौधरी रियाज साहब, जिनका तल्लक मेरी यूनियन कौंसिल छत्रों से है, मेरे भाई गाँव से है। वो शोएब साहब के लिए न सिर्फ छत्रों में बल्कि पूरी तहसील डडियाल में बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो तफसील सैयद अब्बास हुसैन शाह साहब दे सकते हैं। और उसके बाद मेरे भाई चौधरी इब्रार साहब, जिनका तल्लक डिंगल से है। और उसके बाद मेरे भाई चौधरी शहजाद साहब, जिनका 18 से तल्लक है। और हाई वाकम में मुकीम है मुगल यूसुफ साहब और बहुत से दोस्त हैं जिनका तफसील में जाना बहुत मुश्किल है, उनसे माजरत चाहता हूँ। 1-2 बातें करके मैं इजाजत चाहूँगा क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है। इलेक्शन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। हमारे उम्मीदवार जनाब राजा शोएब आबद का इंतखाबी निशान जीप रात हो चुका है। हम तमाम दोस्तों और बुजुर्गों को दिन रात मेहनत करनी है और 25 तारीख को इंतखाबी निशान जीप पर ठप्पे लगाकर इनको कामयाब करना है इंशाअल्लाह। एक बात का मैं जिक्र करता चलूं कि आज से कबल 1-1.5 साल पहले जब मैंने शोएब साहब के साथ इनकी टीम का हिस्सा बना तो कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि आप बहुत गलत फैसला कर रहे हैं, ये बहुत नौजवान है, ना तजर्बाकार है, इसके पास बहुत सी उन्होंने बातें बताई। लेकिन ये जब मैं गफीर देकर मैं आज यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ये हमारे इस इलेक्शन के जो आखिरी डेट है 25 तारीख हमारे नामजद मेंबर होंगे। ये इन्होंने बहुत सख्त मेहनत की, ये अकेले चले थे और ये काफिला जो यहाँ जमा कर दिया है ये इनके अथक मेहनत है और इस बात का सबूत है कि यही हमारे जो है मल्ले बन सकते हैं और हमें इन्हीं को वोट देनी चाहिए। इसके साथ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी यूनियन काउंसिल से इंशाअल्लाह आपके सामने जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने कितनी मेहनत की है। मैं बातों पर यकीन नहीं रखता। इसी के साथ बातें तो बहुत है, दिल भी चाहता है कि इतना जब मैं गफीर देखकर बातें करूं, लेकिन बहुत से माकरीन हैं और स्टेट सेक्रेटरी साहब की भी हदायत है। इसकी वजह से मुख्तार करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि 25 तारीख ना हम साहब बल्कि हमारी माएँ बहनें भी हम उनको भी बताएंगे और जीत के निशान को कामयाब कराएंगे। राजा साजिद कलजू। गिरती हुई दीवारों का हमदर्द हूँ लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तश नहीं करता। रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार, रहता हूँ फकीरों की दुआओं का तलबगार। शहूं से तमन्ना सिताइश नहीं करता।
माथे के पसीने की महक आए न जिससे, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, लहरों से लड़ा करता हूँ दरिया में उतर कर, साहिल पे खड़े होके साजिश नहीं करता। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की तकरीब के सदरे आजी शरीफ साहब, मेहमान खुसूसी, मेरी कंस्टिट्यूंसी के दिलों पे राज करने वाला 32 साला नौजवान, उम्मीदवार बराए कानून साज असेंबली, मेरा छोटा भाई राजा शहीब आबद साहब, स्टेज पे बैठे हुए, पंडाल में तशरीफ रखने वाले मीडिया के दोस्त, सदर प्रेस क्लब डडियाल ख्वाजा मसूद साहब और उनकी पूरी टीम, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा तल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। मैं बरतानिया का ना मुस्लिम लीग नून का मरकजी नायब सदर हूँ। जब ये इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ तो हम बरतानिया के तमाम ओहदेदारों ने वज़ीर आज़म और सदर जमात राजा फारूक कादर खान को ये लिखा कि डडियाल के अंदर मेरिट पे फैसला करें, डडियाल के अंदर सर्वे कर लें, जिस शख्स के साथ, जिस भी जमाती उम्मीदवार के साथ ज्यादा लोग होंगी, ज्यादा लोगों की हमदर्दियां होंगी, आप उसको टिकट दे दें, हम टिकट होल्डर की सपोर्ट करेंगे। मगर जब टिकट की बारी आई तो राजा फारूक कादर साहब ने और वो जो बोर्ड था उसने हमारे फैसले पे कोई नजरसानी ना की। उन्होंने ऊपर से ये फैसला आया कि सिटिंग एमएलए को टिकट दे दें, लेकिन सिटिंग एमएलए को टिकट देने का ये मतलब नहीं है शहजाद नाडवी साहब पंडाल। जनाब सईद नाडवी साहब को हम डडियाल आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। सईद शहजाद नाडवी साहब को पंडाल की जिन्नत करने पर खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग बैठ जाएं, सईद नाडवी साहब इधर ही हैं, वो खिताब भी करेंगे, आप लोग बैठ जाएं प्लीज। तो बात मैं कर रहा था टिकट की, तो जमात ने जो इलाका अंदराल में टिकट दिया, आप लोगों ने ये देख लिया जो टिकट ऑर्डर की हालत है और जो इस 32 साला नौजवानों के साथ डडियाल के लोगों का प्यार मोहब्बत है, वो आज आप लोगों ने ये रेफरेंडम दे दिया है कि ये हल्का शहीब आबद का हल्का है। इस हल्के के अंदर और बूढ़ा नौजवान और बाशऊर शहीब आबद की सफू में अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा है। और इंशाअल्लाह ताला कल जब यहाँ पे मेरी कायद मरियम नवाज शरीफ तशरीफ लाने वाली है, जिस तरह उनकी मिन्नतें मथाजी करके उनको लाया गया है वो मैं जानता हूँ, जिस तरह से उनको यहाँ पे बुलाया गया है उस सारी कहानी से मैं वाकिफ हूँ। मुझे पता है जो मौजूदा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मेंबरान हैं, ओहदेदार हैं, एक फर्जी तंजीम साजी की गई है मरियम को खुश करने के लिए। मुझे पता है उनमें इतनी सकत नहीं है
उनमें इतनी ताकत नहीं है। जो मौजूदा एमएलए ने उन कारकुनों का हाल किया वो किसी से छुपा ढका नहीं है। उन्होंने 3 साल रो रो के गुजारा किया है। मुझे पता है कि वो मरियम के सामने कोई ऐसी बात नहीं करेंगी, लेकिन ये मैं बात वसूख के साथ कहता हूँ, डडियाल की ये हवाएं, ये फिजाएं, ये पहाड़, ये दरिया मरियम को ये बताएंगी कि यहाँ पे मुखलस कारकुनों का, जमाती कारकुनों की 5 साल तजलील की जाती रही है। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तो ये लोग आज यहाँ पे मैसेज छोड़ के जाएंगे और मेरी कायद को ये मैसेज मिल जाएगा कि यहाँ पे नाइंसाफी हुई है टिकट में। आज का बस जलसा देख रहे हैं, हमने कोई बड़ा लीडर न पाकिस्तान से मंगाया न आजाद कश्मीर से मंगाया। यही वही लोग हैं जो कॉर्नर मीटिंग करते थे, जो आपके घर जाके कैंपेन करते थे। आज हमने ये साबित कर दिया है कि 25 जुलाई का दिन राजा शाही बाबत का दिन है, यहाँ की गयूर अवाम का दिन है, और अगले 5 साल आपकी इस मेहनत का आपको रिटर्न मिलेगा। जो नाइंसाफियां, जो ज्यादतियां आपके साथ हुई हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसका अजाला करेंगे। राजा शाही बाबत का तलक जिस खानदान से है, ये गाजियों का खानदान है, ये सियासी लोगों का खानदान है, ये न जागीरदारों का खानदान है, न वडेरों का खानदान है। मैंने जिस प्लेटफॉर्म से तारीख आजादी के वाला से कदम रखा, वो प्लेटफॉर्म देने वाला इनका ताया जान प्रोफेसर आरिफ खान हैं, जिन्होंने तारीख आजादी के लिए दिन रात एक की है और वो अभी तक कर रहे हैं। और तारीख आजादी के वाले से आज तक प्रोफेसर आरिफ साहब का नाम बड़े अदब एहतराम से लिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने उनसे फायदा उठाया आज वो दर बदर रुसवा हो रहे हैं, वो दर बदर आज ठोकरें खा रहे हैं। कश्मीर के खून, शुदा के खून से गद्दारी करने वालों का अंजाम बहुत बेनानक होता है। मैं राजा आबद मारूम पे 1-2 बातें करने के बाद राजा आबद मारूम, जिसकी मैंने हमेशा मुखालफत की थी। 2011 के इलेक्शन में भी हमने राजा साहब की मुखालफत की, 2006 के इलेक्शन भी में मुखालफत की, लेकिन हम राजा आबद मारूम की मुखालफत करते जाते थे, वो हल्के में प्यार बांटते जाते थे। उन्होंने कभी भी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। उन्होंने जिन लोगों को असेंबली में भेजा, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन राजा आबद का किरदार, उनका नाम आज भी ना सिर्फ हल्का लेवन डडियाल बल्कि पूरे आजाद कश्मीर के लोगों के अंदर। राजा शाही बाबत यह राजा आबद मारूम का बेटा है। जिस तरह राजा आबद मारूम ने आप लोगों की खिदमत की, इक़्तिदार में ना होते हुए जो खिदमत की, इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को हम इक़्तिदार में भी चले जाएंगे और बेहतर तरीके से अपनी कंस्टिट्यूएंसी की खिदमत करेंगे। हल्का 11 डडियाल में जितने भी मकामी उम्मीदवार हैं, उनका मंजिल एक है, मकसद एक है कि लोगों की खिदमत करें। शाही बाबत की भी मंजिल लोगों की खिदमत है। हम इक़्तिदार के भूखे नहीं हैं। अगर इक़्तिदार के भूखे होते तो कहीं कोने में बैठकर आप लोगों के ज़मीरों का सौदा कर लेते और खुद इक़्तिदार में चले जाते। हम इतने बेगैरत लोग नहीं हैं जो कोनों में बैठकर सौदे करते हैं, आपके ज़मीरों को बेचते हैं और फिर 5 साल आपको जलील करते हैं। मैं तमाम जो लोग, मकामी लोग जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, चले आओ हमारे साथ। हेलीकॉप्टर में भी 2 लोगों से ज्यादा कोई सफर नहीं कर सकता।
साइकिल में भी आप ये मंजिल अबूर नहीं कर सकते। जो दूसरे तलवार भी एक हाथ में होती है, जो दूसरे लोग हैं उनसे मैं कहता हूं कि हमारी जीप पे सफर कर लें। 25 जुलाई के बाद आप पछताएंगे। मैं आपको दावत देता हूं, चले आओ हमारे काफिले में और मिलकर लोगों की खिदमत करते हैं। अगर आप हमारे काफिले में आ जाएं तो हम चोर लटेरू को, इस्लामाबाद वालों को, मिरपुर वालों को अगर तहसील बदर ना कर दिया तो आप कहना कि जबार ने यहां झूठ बोला था। तो मैं तमाम लोगों का मशकूर हूं। मैंने बहुत जगह खिताब किए, टीवी चैनल पे भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, लेकिन कहीं भी अल्फाज की कमी नहीं आई। आज मेरे पास अल्फाज नहीं है हल्का लेवन डडियाल के लोगों कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। जिस मुनज़्ज़म तरीके से, जिस दिलेरी से, जिस हिम्मत से, जिस जस्तजू से आपने राजा शोएब आबद की कैंपेन की है, वो शुक्रिया अदा करने के लिए आज मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी मंजिल सिर्फ एक हफ्ते की दूरी पे है। आपने जिस तरह एक महीना ये कैंपेन किया, आपने एक हफ्ता मुत्तहिद होकर इत्तेफाक से, सलूक से किसी के साथ आपने ज्यादती नहीं करनी है। जो शख्स अगर किसी को वोट देना चाहता है, आपने उसका राह रास्ता नहीं रोकना, उसका पानी बंद नहीं करना, उसको गाली गलोच नहीं देनी। आपने उनका भी अदब एहतराम करना है, लेकिन इन नौसर बाजू को अपने गली मल्लू में दाखिल नहीं होने देना। जिस तरह अली मोइनपुर गंडा आज पूरे आजाद कश्मीर के लिए बदनामी का बाइस बना हुआ है, मैं समझता हूँ अली अमीनपुर गंडा नहीं बल्कि ये पीटीआई वाले मेरी रियासत की बदनामी के बाइस बन चुके हैं। जो बात गिनेर के मकाम पे हुई, हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। पाकिस्तान के मीडिया, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में डडियाल को डिस्कस किया जा रहा है और ये बात हो रही है कि डडियाल वालों को अमीनपुर गंडा ने 5 लाख के यूज खरीद लिया है। शर्म करो पीटीआई वालों, आपका कैंडिडेट तो नायल हो जाएगा, वो नायल है, हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। अहल लोगों से मुकाबला होता है, नायल लोगों से कभी मुकाबला नहीं हुआ करता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजहर सादिक से, आप डडियाल के लोगों का मान रख लें। आपको जब अंगूर खट्टे थे 2016 में, आपको मुस्लिम लीग ने उनका टिकट नहीं मिला तो आपने कहा कि पनामा लीग का केस चल पड़ा है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे, तो मैं इस जमात का टिकट नहीं लेता। तो आपने फिर मजबूरन जाके पीटीआई का टिकट लिया। क्यों नहीं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट लिया जिसने 25 साल आपको इख्तियार दिया? ये बेवफा लोग हैं, इनके अंदर कोई वफा नहीं है। आज इन लोगों ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का डडियाल से जनाजा निकाल दिया है। और मैं ये बात आपको बता दूं कि ये पीटीआई से भी वफा नहीं करेंगे। अजहर सादिक, तुम इस डडियाल का वकार को बाहर रखना चाहते हो, डडियाल के लोगों की इज्जत और तकरीम का ख्याल रखो और अपने इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतरी है। और ना ये लोग तेरे मुंह पे तेरे तमाचे मारेंगे 25 जुलाई को कि तू ना डडियाल में मिलेगा ना इस्लामाबाद में मिलेगा। तो डडियाल वालों, 25 जुलाई को हम इसी स्टेज पे इंशाल्लाह अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। हाथ उठाकर बोलो, मनाएंगे इंशाल्लाह। जीत का निशान, जीत का निशान, जीत का निशान राजा शोएब आबद, राजा शोएब आबद। वाहिद दुआन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजा मुजम्मल यूके, राजा परवेज, राजा आजाद चौधरी कमर जो आप आज भी शोएब आबद के साथ खड़े, दावत से खिताब दूंगा आपके उम्मीदों का अमल कर। शोएब आबद अमीर बार कानून असेंबली, जनाब शोएब आबद साहब।
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यार वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अमीर शहर की आंखों में खौफतारी है, अमीर शहर की आंखों में खौफतारी है। मैं गरीब शहर का रास्ता हमवार कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और आप तकरीबन 6 घंटे से आपने मेहनत करके यहाँ पर ये काफ़ी सारे लाए हैं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह डडियाल के लोगों ने आपने मेरा साथ दिया है, हर गली मोहल्ले मकीनों ने जिस अकीदत का इज़हार किया है, डडियाल में मेरी मोहब्बत को यकीनी बनाया है, मैं हमेशा याद रखूँगा और आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और यहाँ पर आपका इस्तकामत के साथ बैठना, आपका यहाँ पर इस्तकामत के साथ बैठना ये साबित करता है कि 25 जुलाई जीत की होगी। कप्पे पे कप्पा, मैं कप्पे पे कप्पा, कप्पे पे कप्पा। मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर तकरीब हाजी शरीफ साहब और बाकी स्टेज पर तशरीफ फरमा, और इस पंडाल में जितने भी बुजुर्ग नौजवान जो सुबह से जो है इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लिए, ये एफर्ट किया आपने, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। पिछले 3 माह से आप जिस तरह मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई टिकट नहीं है पार्टी का, लेकिन आप है टिकट मेरे आप है सरमाया मेरे। मैं प्रिंट मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बड़ी भरपूर कवरेज दी। आप यहाँ देख सकते हैं, मेरी दाएं तरफ पीछे तक देख सकते हैं, मेरी इस तरफ दाएं तरफ देख सकते हैं खड़े नौजवान, मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर PTI ने जलसा किया था और यहाँ से लोग उठकर चले गए थे। आज आप देख सकते हैं 2 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये साबित करते हैं कि 25 जुलाई हमारी जीत है। लेकिन अगर किसी ने इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की, किसी ने इस इलेक्शन में पर डाका डालने की कोशिश की, तो उसका जिम्मेदार रिटर्निंग अफसर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इस हवाले से जो वाकया पिछले दिनों गनेर में हुआ, वो सामने खुली धांधली है। इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है? और यहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो फैसला, जो अपनी राय भेजी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसने मुस्तरद कर दी है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर वो चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और ये रिटर्निंग अफसर साहब चाहते हैं कि इस इलेक्शन पर उंगली ना उठे, तो अभी 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन के अंदर फैसला करें कि ये उम्मीदवार अहल है या नाअहल है। अदरवाइज आजाद कश्मीर में, पूरे आजाद कश्मीर में, मैं मीडिया के जरिए उन तक पैगाम पहुंचाता हूं, पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इस इंतखाब को कबूल नहीं किया जाएगा, और इसके जिम्मेदार ये 2 शख्स होंगे और कोई नहीं होगा। जैसे भी रहेंगे, यहाँ पर जैसे भी रहेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं नौजवानों से कहूंगा, यहाँ पर बड़ी देर से मेरे बुजुर्ग और नौजवान इंतजार कर रहे हैं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम अदारों को, हमारे लोगों में आगे भी बड़ी महरूमियां हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं। यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद जोई साहब काबिल एहतराम है, उनकी खामोशी मसला कश्मीर के हवाले से सवालिया निशान है। वहाँ पर
गलगित के अंदर उन्होंने इंतखाब के बाद उसको सूबा बनाने का फैसला कर लिया है। यहाँ पर भी लोगों के अंदर बहुत से सवाल निशान है, और ये जो हरकत अली मीन गंडापुर कर रहा है, इससे साबित हो रहा है कि ये कश्मीर का सौदा करने जा रहे हैं। लेकिन जब तक ये नौजवान, ये बुजुर्ग और कश्मीर का आखिरी जो है हमारा बुजुर्ग जिंदा है, उस वक्त तक ये फैसला नहीं कर सकते, नहीं होने देंगे ये फैसला। हम उनको पैगाम देते हैं, यहाँ से डडियाल से पैगाम देते हैं। और ये डडियाल का हल्का जो हमेशा ये बदकिस्मती है, माजी में हमारा मजाक बनाया जाता है कि यहाँ पर चंद खटपैन पिछले 20 साल से हमारी तकदीर का फैसला कर रहे हैं। आज मुझे इस बात पर फख्र है, नौजवानों पर, इस हल्के के बुजुर्गों पर फख्र है कि इन खटपैंटों के नीचे से निकले जो हमेशा इन लोगों का ठेका लगाते थे और इनका सौदा करते थे, और जो हुकूमत होती थी आगे होते थे और अपनी जेबें भरते थे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और इस हवाले से जो मेरा साथ दिया इस हल्के के नौजवानों ने दिया है, यूनिक कौंसिल रट्टा के बुजुर्गों नौजवानों ने दिया है, यूनिक कौंसिल किटार के नौजवान बुजुर्गों ने दिया है, यूनिक कौंसिल ओनार के नौजवान बुजुर्गों ने दिया है, सिटी के टाउन के लोगों ने दिया है, रायपुर के लोगों ने दिया है, अनकर के लोगों ने दिया है, छतरों के नौजवानों बुजुर्गों ने दिया, शाह के नौजवानों बुजुर्गों ने दिया। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मैं आखिर में मैं अपने मंशूर के हवाले से, मेरा मंशूर यहाँ पर है, हमने बड़ा सादा सा मंशूर रखा है, माजी की सियासतदानों की तरह जो बार बार ये खमदान बारियां लगा चुके हैं, बार बार असम्बलियों में जा चुके हैं, लेकिन बुनियादी मसाइल आज तक आपके हल नहीं हुए, आज तक आपको आपके राइट्स नहीं दिए गए। मैं उस हवाले से जो है 2 मिनट में बात करते हुए इजाज़त चाहूँगा। यहाँ पर मंशूर है, वो इस जलसे के बाद आपके दरमियान तकसीम भी करूँगा। मेरा पहला जो है एजेंडा है बल्दियाती निज़ाम। बल्दियाती इंतखाब के बगैर जमहूरी सिस्टम नामुकम्मल है। ये जो सिस्टम है ये जमहूरी डिक्टेटरशिप है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे नुमाइंदे जो पिछले 85 से ये खमदान जो असम्बली में ये कहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो तो लोगों के पास इख्तियार चले जाएंगे। आज तक हेल्थ का सिस्टम देख लें, THQ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। तहसील हेडक्वार्टर में जदीद हेल्थ मशीनरी मुकम्मल स्टाफ को यकीनी बनाएंगे। हर यूनिट कौंसिल में हेल्थ क्लिनिक डिस्पेंसरी का निज़ाम बेहतर बनाकर आवाम को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की अपग्रेडेशन में दिल के यूनिट का इजाफा नागजीर है, क्योंकि हमारे लोग दिल का दौरा पड़ने से रावलपिंडी या मीरपुर जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। तहसील हेडक्वार्टर में आई सर्जन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की असामियों की तख्लीक के लिए जद्दोजहद करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तहसील हेडक्वार्टर में मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन स्पेशलिस्ट की 2 असामियों की तख्लीक को अंदराज की आवाम की सहूलत के लिए हर 2 सूरत में मुमकिन बनाना। लेडीज हेल्थ वर्कर्स को फाल करने के लिए दीद इलाकों में ख्वातीन को तिब्बी मिसाइल में मदद देना। तालीम हित्ता डडियाल के हर बच्चे को ज़ेवर तालीम से रास्ता करना, मुफ्त और यकसा तालीम निज़ाम को यकीनी बनाना। नौजवानों के लिए बुनियादी तालीम के अलावा फ़नी तरबीती सेंटर कायम करना हमारी अवलीन तरजीह होगी। मस्त यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए डडियाल में बहाली, गरीब यतीम और नादार बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी, डडियाल में लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप असम्बली में दे देंगे। करप्शन का खात्मा यकीनी बनाऊंगा। हम अपोजिशन में भी रहे, अगर किसी ने गरीब आदमी को तंग किया, लूट मार की, तो हमेशा मेरे वालिद ने भी आवाज़ उठाई, मैंने भी जूते मार कर मैंने यहाँ ब्लॉक जो खुला वहाँ से पार किए जो चंद जो है यहाँ अफसरान। और बेरोजगारी के सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए अगले 30 साल में बेरोजगारी है। इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे जैसे यूरोप में बनाई जाती है, वो 30 साल पहले पॉलिसी बनाते हैं। यह काम है इन नुमाइंदों का, मेंबर कानून असम्बली का कानून साजी करना। बल्दियाती या बंदर बांट ये जो कर रहे हैं स्कीमों के, ये आपका अख्तियार है, बल्दियाती इदारों का अख्तियार है। आप तक अख्तियार पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। अदल इंसाफ यकीनी होगा इंशाअल्लाह ताला हमारे दौर में। सियासी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊंगा। खेल सेहतमंद माशरे के लिए तमाम यूनिट कौंसिल में अभी तक कोई खेल के स्पोर्ट्स के जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा पहले मरहले में मैं चंद यूनिट कौंसिल में जो है स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनाऊँ। बुजुर्गों की रहनुमाई में इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में बेहतरी लाऊंगा। मैं आखिरी बात करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मुझे एहसास है आप कितनी देर से जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं,
नारवी साहब भी 2 बातें करेंगे। मेरी बात आपने सुना है नारवी साहब, मैं बड़े सपोर्टर है। मैं आखिरी बात, आपने एक बात यकीनी बनानी है, जो हमारा इंतखाबी निशान है जीप, इस हवाले से आप तमाम बुजुर्गों नौजवानों ने घर में अपने माओ बहनों को बताना है, हाथ खड़ा करके आप मुझसे वादा करेंगे, आप ये सब घरों में जाएंगे और कंप्लेंट चलाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। हमारी कामयाबी यकीनी है अगर आप डोर टू डोर जाएंगे। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर आप सबके घर के वोट मुझे मिल गए तो हमें अल्लाह की जात के अलावा कोई ताकत असेंबली में जाने से नहीं रोक सकती। अगर रोका गया तो उसका असर आप देखेंगे 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को जो मैं करूंगा। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ पोलिंग एजेंट्स के हवाले से। 23-24 तारीख को आपने सब ने जो हमारा मर्कजी दफ्तर है उससे रब्ता करना है। हमने पोलिंग एजेंट्स फाइनल कर रहे हैं, उस हवाले से आपने मुझसे रब्ता करना है और आपने 25 जुलाई तक आप पहरा दें। मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल मैं आपका पहरा दूंगा। हमारा तमाम बुजुर्गों नौजवानों का अगर किसी की दिल आजारी हो, मैं नाम ना ले सका, यहाँ पर सीनियर जो हमारे मुकर्रीन थे, मैं माजरत खाऊं कि टाइम की कमी की वजह से आपको चिट्ठे दी काबिल एहतराम है आप, मैं माजरत खाऊं। वमा अलैना इल्लल बलाग नबी। बहुत शुक्रिया। लाडवी साहब आया। जनाब उम्मीदवार राजा शोएब महमूद साहब, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, दोस्तों, नौजवानों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सारे मैं इज्जत देने पर डडियाल नहीं आवाम ना शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इतना मैं 2-3 गल्ला करता हूँ। ये गल तो पहली है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रशीद सलेनी की मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पिछले दिन डडियाल जरा इतना 5 लाख रुपया कुछ समझ दिता नहीं। ये मैं समझ रहा कि इसका फैसला 2 दिन के अंदर किया जाए, 2 दिन के अंदर किया जाए ताकि कोई गल मैं पढ़ रहा है कि जो चुकी पढ़ लगे कि ये जी जमात सारी माड़ी पुरानी है पीटीआई ने यानी कि तारिक साहब जी तारिक खान है जो चुकी आने साहब असा जितन गए हो, असा जितन गए न कोई ये हारी के ने वो हारा अपनी तस्लीम करी गया। मैं डडियाल में उन अजीम उन दोस्तों की सलूक पेश कर रहा हूँ, उन अजीम हस्तियों की जिन्हें भी राजा आबद मरूम साहब, अब्दुल खालिक अंसारी एडवोकेट साहब, अली मोहम्मद चाचा शहीद साहब, जस्टिस यूनुस रफी साहब, ये अजीम लोग डडियाल है। मैं इन्हें की सलाह पेश कर रहा हूँ। राजा आबद मरूम साहब माशाल्लाह बड़े मेरे साथ बड़े बड़े करीबी साथी सुन असा क्या जमात ही रही कम किया माशाल्लाह भी फख्र होया कि राजा शोएब महमूद साहब भी बिल्कुल उन्होंने तरह ही करने पे उन्होंने बिल्कुल इस तरह माशाल्लाह बड़े ही दबंग, बड़े ही मिलनसाज, बड़े ही मोहब्बत रेलू डडियाल ने लोगों सो खुशकिस्मत हो सो कि राजा शोएब महमूद जैसा बंदा मिला। डडियाल काड़ा हमारे बहुत करीब है, सी पता 5 दिन बाद में सारे खोल जो बंद मैं पहले भी मीडिया पर कर चुका कि मैं तो सारे लोगों मैं कि सभी अजीम लोगों को कि सुबह राजा शोएब जैसा लीडर मिला सच्चा का दौर है और राजा शोएब महमूद रहा सब लोगों लाया। मैं इतना डडियाल ने राजा शोएब महमूद ने जीत डडियाल सीट में काफी दिनों दिन सुने था लाइव के साथ जीती चुके हैं। सो तकड़े से सोशल मीडिया पर भी मैं पूरी दुनिया के फैन हूँ, सब दिन नंबर 1 अगर लोग भी पसंद कर रहे ना तो वो डडियाल ने बहुत चंगे ने सही दिनों बंदे प्यार करने ने ताया जरा शोएब महमूद है ना सो क्या करना होना सो ज्यादा टाइम ना मैं कहना चाहूँ। सो सारे बुजुर्गों दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। निशान पता क्या है जीप 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 क्या कर रहा है डब्बे पर डब्बा डब्बे पर डब्बा मारो चलिए तो
बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तमाम दोस्तों का जिंदाबाद। आसिम अब्बास शाह साहब आपने शेर पेश कर दिया। आप आए आसिम अब्बास शाह, जैन अब्बास शाह आपने जो शेर पेश करा था वो शेर पेश करें। जैन अब्बास साहब आपने शेर पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्त की किल्लत की वजह से एक शेर की इजाज़त चाहूँगा कि बुझ गया था दिया आबिद की सूरत में, बुझ गया था दिया आबिद की सूरत में, हुआ है दोबारा रोशन शाहिद की सूरत में। तमाम यूनियन कौंसिल से शायद जो आप आज भी शोएब अहमद के साथ खड़े, दावत से खिताब दूंगा आपके उम्मीदों का अमल कर। शोएब अहमद अमीर बारिकार उठा असम्बली जनाब शोएब अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। अमीर शहर की आंखों में खौफतारी है, अमीर शहर की आंखों में खौफतारी है। मैं गरीब शहर का रास्ता हमवार कर रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, और आप तकरीबन 6 घंटे से आपने मेहनत करके यहाँ पर ये काफ़ी सारे लाए हैं। मैं आपका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। जिस तरह डडियाल के लोगों ने आपने मेरा साथ दिया है, हर गली मोहल्ले मकीनों ने जिस अकीदत का इज़हार किया है, डडियाल में मेरी मोहब्बत को यकीनी बनाया है, मैं हमेशा याद रखूँगा और आपका शुक्रगुजार रहूँगा। और यहाँ पर आपका इस्तकामत के साथ बैठना, आपका यहाँ पर इस्तकामत के साथ बैठना ये साबित करता है कि 25 जुलाई जीत की होगी। मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा सदर तकरीब हाजी शरीफ साहब और बाकी स्टेज पर तशरीफ फरमा, और इस पंडाल में जितने भी बुजुर्ग नौजवान जो सुबह से जो है इंतज़ार कर रहे हैं मेरे लिए, ये एफर्ट किया आपने, मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। पिछले 3 माह से आप जिस तरह मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे पास कोई सरमाया नहीं है, मेरे पास कोई टिकट नहीं है पार्टी का, लेकिन आप हैं टिकट मेरे आप हैं सरमाया मेरे। मैं प्रिंट मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं इस हवाले से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बड़ी भरपूर कवरेज दी। आप यहाँ देख सकते हैं, मेरी दाएं तरफ पीछे तक देख सकते हैं, मेरी इस तरफ दाएं तरफ देख सकते हैं खड़े नौजवान, मेरे बाएं तरफ देख सकते हैं। यहाँ पर PTI ने जलसा किया था और यहाँ से लोग उठकर चले गए थे। आज आप देख सकते हैं 2 बजे से लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये साबित करते हैं कि 25 जुलाई हमारी जीत है।
لیکن اگر کسی نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی, کسی نے اس الیکشن میں پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی, تو اس کا ذمہ دار ریٹرننگ افسر اور چیف الیکشن کمشنر ہوگا. اس حوالے سے جو واقعہ پچھلے دنوں گنیر میں ہوا, وہ سامنے کھلی دھاندلی ہے. اس سے بڑی دھاندلی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں سے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے جو فیصلہ, جو اپنی رائے بھیجی ہے چیف الیکشن کمشنر نے, اس نے مسترد کر دی ہے, اور یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر وہ چاہتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر صاحب اور یہ ریٹرننگ افسر صاحب چاہتے ہیں کہ اس الیکشن پر انگلی نہ اٹھے, تو ابھی 10 دن باقی ہیں. 10 دن کے اندر فیصلہ کریں کہ یہ امیدوار اہل ہے یا نااہل ہے. ادروائز آزاد کشمیر میں, پورے آزاد کشمیر میں میڈیا کے ذریعے ان تک پیغام پہنچاتا ہوں, پورے آزاد کشمیر کے اندر اس انتخاب کو قبول نہیں کیا جائے گا, اور اس کے ذمہ دار یہ 2 شخص ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. جیسے بھی یہاں پر زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نوجوانوں سے کہوں گا, یہاں پر بڑی دیر سے میرے بزرگ اور نوجوان انتظار کر رہے ہیں. میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام اداروں کو, ہمارے لوگوں میں آگے بھی بڑی محرومیاں ہیں, بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. یہاں پر بیرسٹر سلطان محمود جوئی صاحب قابل احترام ہے, ان کی خاموشی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے. وہاں پر گلگت کے اندر انہوں نے انتخاب کے بعد اس کو صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہاں پر بھی لوگوں کے اندر بہت سے سوالیہ نشان ہیں, اور یہ جو حرکات علی مین گنڈا پور کر رہا ہے, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کشمیر کا سودا کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب تک یہ نوجوان, یہ بزرگ اور کشمیر کا آخری جو ہے ہمارا بزرگ زندہ ہے, اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, نہیں ہونے دیں گے یہ فیصلہ. ہم ان کو پیغام دیتے ہیں, یہاں سے ڈڈیال سے پیغام دیتے ہیں, اور یہ ڈڈیال کا حلقہ جو ہمیشہ یہ بدقسمتی ہے, ماضی میں ہمارا مذاق بنایا جاتا ہے کہ یہاں پر چند کھٹپین پچھلے 20 سال سے ہماری تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. آج مجھے اس بات پر فخر ہے, نوجوانوں پر, اس حلقے کے بزرگوں پر فخر ہے کہ ان کھٹپینٹوں کے نیچے سے نکلے جو ہمیشہ ان لوگوں کا ٹھیکہ لگاتے تھے اور ان کا سودا کرتے تھے, اور جو حکومت ہوتی تھی آگے ہوتے تھے اور اپنی جیبیں بھرتے تھے. آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا, اور اس حوالے سے جو میرا ساتھ دیا ہے اس حلقے کے نوجوانوں نے دیا ہے, یونی کونسل رٹا کے بزرگوں نوجوانوں نے دیا ہے, یونی کونسل کٹار کے نوجوان بزرگوں نے دیا ہے, یونی کونسل اونار کے نوجوان بزرگوں نے دیا ہے, سٹی کے ٹاؤن کے لوگوں نے دیا ہے, رائے پر کے لوگوں نے دیا ہے, انکر کے لوگوں نے دیا ہے, چھتروں کے نوجوانوں بزرگوں نے دیا, شاہ کے نوجوانوں بزرگوں نے دیا. میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. میں آخر میں اپنے منشور کے حوالے سے, میرا منشور یہاں پر ہے, ہم نے بڑا سادہ سا منشور رکھا ہے. ماضی کی سیاستدانوں کی طرح جو بار یہ خاندان باریاں لگا چکے ہیں, بار اسمبلیوں میں جا چکے ہیں, لیکن بنیادی مسائل آج تک آپ کے حل نہیں ہوئے, آج تک آپ کو آپ کے رائٹس نہیں دیے گئے. میں اس حوالے سے جو ہے 2 منٹ میں بات کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. یہاں پر منشور ہے, وہ اس جلسے کے بعد آپ کے درمیان تقسیم بھی کروں گا. میرا پہلا جو ہے ایجنڈا ہے بلدیاتی نظام. بلدیاتی انتخاب کے بغیر جمہوری سسٹم نامکمل ہے. یہ جو سسٹم ہے یہ جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نمائندے جو 85 سے یہ خاندان جو اسمبلی میں یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو تو لوگوں کے پاس اختیار چلے جائیں گے. آج تک ہیلتھ کا سسٹم دیکھ لیں, THQ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں جدید ہیلتھ مشینری مکمل سٹاف کو یقینی بنائیں گے. ہر یونٹ کونسل میں ہیلتھ کلینک ڈسپینسری کا نظام بہتر بنا کر عوام کو مفت علاج کی سہولت فراہم کرنا. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کی اپ گریڈیشن میں دل کے یونٹ کا اضافہ ناگزیر ہے, کیونکہ ہمارے لوگ دل کا دورہ پڑنے سے راولپنڈی یا میر پر جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر میں آئی سرجن
और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की असामियों की तख्लीक के लिए जदोजहद करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तहसील हेडक्वार्टर में मेडिकल स्पेशलिस्ट, सर्जन स्पेशलिस्ट की 2 असामियों की तख्लीक को अंदराल की आवाम की सहूलत के लिए हर दो सूरत में मुमकिन बनाना, लेडीज हेल्थ वर्कर्स को फाल करने के लिए दीद इलाकों में ख्वातीन को तिब्बी मिसाइल में मदद देना, तालीम हित्ता डडियाल के हर बच्चे को ज़ेवर तालीम से रास्ता करना, मुफ्त और यकसा तालीम निज़ाम को यकीनी बनाना, नौजवानों के लिए बुनियादी तालीम के अलावा फ़नी तरबीती सेंटर कायम करना हमारी अवलीन तरजीह होगी। मस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए डडियाल में बहाली, गरीब यतीम और नदार बच्चों को मुफ्त तालीम की फराहमी, डडियाल में लाइब्रेरीज का क़याम अमल में लाना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप असम्बली में भेजेंगे। करप्शन का खात्मा यकीनी बनाऊंगा। हम अपोजिशन में भी रहे, अगर किसी ने गरीब आदमी को तंग किया, लूट मार की, तो हमेशा मेरे वालिद ने भी आवाज़ उठाई, मैंने भी जूते मार कर मैंने यहाँ ब्लॉक जो पुला वहाँ से पार किए, जो चंद जो है यहाँ अफसरान। और बेरोजगारी के सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे लिए अगले 30 साल में बेरोजगारी है। इसके लिए पॉलिसी बनाएंगे जैसे यूरोप में बनाई जाती है, वो 30 साल पहले पॉलिसी बनाते हैं। यह काम है इन नुमाइंदों का, मेंबर कानून साज असम्बली का कानून साजी करना। बलदियाती या बंदर बांट ये जो कर रहे हैं स्कीमों के, ये आपका अख्तियार है, बलदियाती इदारों का अख्तियार है। आप तक अख्तियार पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। अदल इंसाफ यकीनी होगा इंशाअल्लाह ताला हमारे दौर में। सियासी कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाऊंगा। खेल सेहतमंद माशरे के लिए तमाम यूनिट कौंसिल में अभी तक कोई खेल के स्पोर्ट्स के जो है कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा पहले मरहले में मैं चंद यूनिट कौंसिल में जो है स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स बनाऊँ। बुजुर्गों की रहनुमाई में इंशाअल्लाह ताला इस हल्के में बेहतरी लाऊंगा। मैं आखिरी बात करते हुए इजाज़त चाहूँगा। मुझे एहसास है आप कितनी देर से जो यहाँ बातें फरमाएं। नाडवी साहब भी 2 बातें करेंगे, मेरी बात आपने सुना है। नाडवी साहब मैं बड़े मैं आखिरी बात आपने एक बात यकीनी बनानी है, जो हमारा इंतखाबी निशान है जीप, इस हवाले से आप तमाम बुजुर्गों नौजवानों ने घर में अपने माओ बहनों को बताना है। हाथ खड़ा करके आप मुझसे वादा करेंगे, आप ये सब घरों में जाएंगे और कंप्लेंट चलाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। हमारी कामयाबी यकीनी है अगर आप डोर टू डोर जाएंगे। यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर आप सबके घर के वोट मुझे मिल गए तो हमें अल्लाह की जात के अलावा कोई ताकत असेंबली में जाने से नहीं रोक सकती। अगर रोका गया तो उसका असर आप देखेंगे 25 जुलाई के बाद 26 जुलाई को जो मैं करूंगा। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ पोलिंग एजेंट्स के हवाले से। 23-24 तारीख को आपने सब ने जो हमारा मर्कजी दफ्तर है उससे रब्ता करना है। हमने पोलिंग एजेंट्स फाइनल कर रहे हैं, उस हवाले से आपने मुझसे रब्ता करना है और आपने 25 जुलाई तक आप पहरा दें। मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल मैं आपका पहरा दूंगा। हमारा तमाम बुजुर्गों नौजवानों का अगर किसी की दिल आजारी हो, मैं नाम ना ले सका, यहाँ पर सीनियर जो हमारे मुकर्रीन थे, मैं माजरत खाऊं कि टाइम की कमी की वजह से आपको चिट्ठे दी, काबिल एहतराम है आप, मैं माजरत खाऊं। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। बहुत शुक्रिया। नाडवी साहब आया। जनाब उम्मीदवार डडियाल राजा शोएब महमूद साहब, मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं, दोस्तों, नौजवानों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सारे मैं इज्जत देने पर डडियाल की अवाम शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इतना मैं 2-3 गल करता। ये गल तो पहली है कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल रशीद सलेनी की मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पिछले दिन डडियाल जरा इतना 5 लाख रुपया कुछ समझ दिता नहीं। ये मैं समझा कि इसका फैसला 2 दिन के अंदर किया जाए, 2 दिन के अंदर किया जाए ताकि कोई गल मैं पढ़ रहा है कि जो चुकी पढ़ लगे कि ये जी वो जमात सारी माड़ी पुरानी है पीटीआई ने, यानी कि तारिक साहब जी तारिक खान है जो चुकी आने साहब असा जितन गए हो, असा जितन गए न कोई ये हारी के वो हार आपने तस्लीम करी।
عظیم ان دوستوں کی سلوک پیش کر رہا ہوں ان عظیم ہستیوں کی جنہوں راجہ عابد مرحوم صاحب, عبد الخالق انصاری ایڈوکیٹ صاحب, علی محمد چاچا چیز صاحب, جسٹس یونس رفیع صاحب, یہ عظیم لوگ ڈڈیال ہیں. میں انہیں کی سلام پیش کر رہا ہوں. راجہ عابد مرحوم صاحب ماشاءاللہ بڑے میرے ساتھ بڑے بڑے قریبی ساتھی سن اسے کیا جماعتی رہتی کم کتا ماشاءاللہ بھی فخر ہویا کہ راجہ شعیب عابد صاحب بھی بالکل انہوں نے طرح ہی کرنے پہ انہوں بالکل اس طرح ہے ماشاءاللہ بڑے ہی دبنگ بڑے ہی میرساز بڑے ہی محبت رہو ڈڈیال نے رکھو سو خوش قسمت ہو سو کہ راجہ شعیب عابد جیسا بندہ ملیا. ڈڈیال کہنا ہمارے بہت قریب ہے سی پتا پنجی کی بات میں سارے کھوڑ جو بند میں پہلے بھی میڈیا پر اعلان کر چکا کہ میں تو سارے لوگوں میں کہ سبھی عظیم لوگوں کو کس کو بھی راجہ شعیب جیسا لیڈر ملا سچا کا دور ہے اور راجہ شعیب عابد رہا سو لوگوں لایا. میں اتنے ڈڈیال نے بچ راجہ شعیب عابد نہیں جیت اعلان کر ہمارے سامنے تو ڈڈیال سیٹ میں کافی دنوں تین سنے سے لائیو بھی کیسا ہو جیتی چکے ہیں سو تکڑے سے سوشل میڈیا پر بھی میں پوری دنیا جنہیں فین ہوں سب تین نمبر 1 اگر لوگ بھی پسند کر رہے نا تو وہ ڈڈیال نے نہیں بہت چنگے نے صحیح دلوں بندرہ پیار کرنے نے تاہی جناب شعیب عابد ہے نا سو کیا کرنا ہونا سو زیادہ ٹائم نہ میں کہنا چاہوں سو سارے بزرگاں دوستوں شکریہ ادا کر رہا ہوں. نشان پتہ کیا ہے جیپ 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 کیا کر رہا ہے ڈبے پر ڈبا ڈبے پر ڈبا بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا زندہ باد. آسم عباس شاہ صاحب آپ نے شعر پیش کر آپ آئے. آسم عباس شاہ صاحب زین عباس شاہ صاحب آپ نے جو شعر پیش کرا تھا وہ شعر پیش کریں. زین عباس صاحب آپ نے شعر پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کی قلت کی وجہ سے ایک شعر کی اجازت چاہوں گا کہ بجھ گیا تھا دیا عابد کی صورت میں, بجھ گیا تھا دیا عابد کی صورت میں, ہوا ہے دوبارہ روشن شاہد کی صورت میں. تمام یونین کونسل سے